Okay, so now we are starting with question number 2. Before starting with question number 2, again I will repeat those 5 points which are related to fixed income investment. Number 1 was interest is calculated on face value. So in the previous lecture, lecture number 1, first lecture में हमने देखा था कि issue price भी होता था. Investments are purchased at 92, 95, but हमेशा हमने interest face value पे calculate किया. So interest should be always calculated on face value. That is the point number 1. Number 2, interest is calculated for every transaction. Again last time हमने question number 1 किया था whether opening balance, purchase, sale और closing balance, चारों transaction का हमने interest calculate किया था. Third, every transaction should be at X interest price. हमने किया था last time adjustments. अगर X interest price दिया था तो we recorded directly to the account. अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया था, अच्छा स्टूडेंट्स, एक्स इंटरेस्ट मींस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, द प्राइस गिवन टू अस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर, तो डायरेक्टली अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं. बट इफ कम इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन, सो कम इंटरेस्ट मींस प्राइस इंक्लूड्स इंटरेस्ट. सो व्हेन प्राइस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इन दैट केस आई नीड एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो एक छोटा सा वर्किंग, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, वी गेट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. Point number 4, whenever there is sale transaction, calculate profit and loss. इसका फॉर्मूला है x interest selling price minus x interest cost price. Selling price क्वेश्चन में दिया होगा, cost price they will never give us. So selling price minus cost price is profit and loss. How to get the cost price? For that we had followed this formula. Weighted average. Face value of investment sold upon total face value, debit minus credit, multiply by cost, debit minus credit. Last point number 5, when we close the accounts, and at that time we must be careful. Investment will be valued at cost price or market price, whichever is less. So these 5 points are applicable for only for fixed income security. Please, these points are not applicable for variable income security. Okay? So now we start with question number 2. अच्छा, फिक्स इनकम सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है. कंपनी को प्रॉफिट जो भी हो, वी आर नॉट कंसर्न, विल अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1st April 2009 मिस्टर थाना बालू हेल्ड, द टर्म हेल्ड इंडिकेट्स ओपनिंग बैलेंस. स्टूडेंट्स, 1st April 2009 मिस्टर थाना बालू हेल्ड 506% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹100 each. तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. सो whenever they give us rate of return, rate of interest, that means कि ये क्वेश्चन डील्स विद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. सो 1st April 2009 धाना बालू हेल्ड मीन्स ओपनिंग बैलेंस 500, वहां ₹500 नहीं लिखा है, जस्ट 500 है. दैट मीन्स 500 क्वांटिटी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है. 506% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹100 each. सो 500 क्वांटिटी है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और एक बॉन्ड उसका फेस वैल्यू 100 है. एट अ कॉस्ट ऑफ ₹48,000. यहाँ पे कॉस्ट आपको दिया है कि ये ओपनिंग बैलेंस जो है ना, उसका कॉस्ट 48,000 है. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st December एवरी ईयर. सिंपल मीनिंग क्या है? अगर जो भी आदमी है, एनी पर्सन who purchase these bonds, government bonds, any person who purchase government bonds, उसको साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट मिलेगा. Twice in a year he will receive interest. उसका 2 डेट है, 30th June, 31st December. He entered into following transactions in respect of 6% central government bonds during year ending 31st March 2010. Students, first time में लिखा था ना 1st April 2009 थाना बालू हेल्ड. So 1st April 2009 स्टार्टिंग डेट था, ओपनिंग बैलेंस था, और लास्ट है थर्ड लाइन ड्यूरिंग ईयर एंडिंग. सो अकाउंट्स क्लोजिंग डेट इज 31st March 2010. देन परचेज ट्रांजैक्शन दिया है, एडजस्टमेंट ए और बी करके. 1st May 2009 फेस वैल्यू ₹10,000 at ₹102 कम इंटरेस्ट. On 1st September 2009 face value ₹30,000 at 105 x interest. Then there are 2 sales transactions. 1st August 2009 face value ₹15,000 at 104 come interest. 1st Feb 2010 face value ₹15,000 at 102 x interest. Show 6% central government bonds account in the books of Mr. Dhana Balu for year ending 31st March 2010. Investments are to be valued at weighted average cost. Whether specified or not specified, students हमको weighted average ही follow करना है. So it is books of
बुक्स ऑफ मिस्टर धाना बालू। इसके पास इन्वेस्टमेंट कौन सा है? 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। सो इन्वेस्टर का नाम है थाना बालू और उसने इन्वेस्टमेंट जो लिया है इसका नाम है 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स we have 6 columns on debit side. Date, particulars. WN means working note. Face value. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ INT is interest. And last column is called as known as cost column. मैंने amount लिखा है. Same way date, particulars. WN stands for working note, face value, interest, amount. Students, last time में मैंने बताया था again never try to draw this account on a single side of the page. Possible नहीं है students, क्योंकि इतने सारे column हैं तो always use a double page. So date, particulars, working note, face value, interest, amount. Date, particulars, working note, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, आफ्टर ड्रॉइंग दिस अकाउंट स्टूडेंट्स अगेन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ड्रॉ टाइम लाइन। एक टाइम लाइन बनाएंगे। 2 रीजन होता है इसके बनाने का। 1 रीजन और द फर्स्ट रीजन इज सो दैट वी डोंट स्किप और मिस एनी ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन हमको क्वेश्चन में दी है वंस अगेन पढ़ते हैं, उसको डेट के मंथ के सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। ओके, 1st April 2009 धाना बालू held. Clearly they have used the term held students. So 1st April 2009. 1st April 2009. It is opening balance. Held means opening balance. 6% central government bonds of 100 each. Face value 100 at a cost of 48,000. Interest is payable on 30th June and 31st December every year. जो भी शख्स है एनी पर्सन जिसके पास ये बॉन्ड्स होगा उसको गवर्नमेंट साल में 2 मरतबा ट्वाइस इन अ ईयर इंटरेस्ट देगी, 30 जून को, 31 दिसंबर। बट स्टूडेंट्स हमको डेट मंथ के सीक्वेंस में जाना है। अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस है, चलो ठीक है हमने लिख लिया। और भी कोई ट्रांजैक्शन है क्या अप्रैल में, देन नेक्स्ट मंथ में, देन जून, ऐसे करना है। तो स्टूडेंट्स अप्रैल में तो अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट डे से ही एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ 6% central government bonds during year ending 31st March 2010. Purchase 1st May 2009. Clearly they have said students purchase 1st May 2009. So 1st May 2009. It's a purchase transaction. Okay students. So May transaction हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ जून होता है, वो पैरा में नहीं दिया आपको, सेकेंड थर्ड पैरा में। अगेन फर्स्ट पैरा सेकेंड लाइन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। क्लियरली दे हैव मेंशन स्टूडेंट्स 30th जून इज द इंटरेस्ट डेट, 30th जून 2009। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं INT, इंटरेस्ट डेट। ओके, नेक्स्ट जून के बाद नेक्स्ट मंथ होता है जुलाई स्टूडेंट्स। इफ यू रेफर, जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेज के पैरा में भी नहीं है, सेल्स के पैरा में भी नहीं है। नेक्स्ट जुलाई के बाद होगा अगस्त स्टूडेंट्स। अगस्त में ना सेल्स है, रेफर थर्ड पैरा, सेल्स 1st August 2009। 1st August 2009, it's a sale transaction. I'm recording on this side of the page. 1st August 2009. Sorry students, it's a sale transaction. Okay. Next, अगस्त के बाद नेक्स्ट मंथ है सितंबर, परचेज के पैरा में 1st September 2009. So 1st September 2009 is a purchase transaction. 1st September 2009 purchase transaction. नेक्स्ट मंथ इज अक्टूबर स्टूडेंट्स। अक्टूबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं। नेक्स्ट मंथ इज नवंबर, नो ट्रांजैक्शन। दिसंबर, यस,
परचेज सेल नहीं है, अगेन सेकेंड लाइन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st December. So 31st December interest transaction. Then next month is Jan, no transaction. Okay students, 1st Feb sales दिया आपको, 1st Feb. 1st Feb they have given us sales. 1st Feb 2010 sale transaction. Finally students, books of accounts are closed on 31st March every year. So 31st March 10. This is accounts closing. मैंने CLG short में लिखा है, accounts closing. Okay. So these are the transactions which are given in the question students. अच्छा students, last time जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, if you remember, if you try to recollect, 1st April जो था ना, ओपनिंग बैलेंस भी था और इंटरेस्ट डेट भी था. बट ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेट चेंज हो गया. यहाँ पे उन्होंने 30th June 31st December. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. जो भी इंटरेस्ट डेट देगा वो हमको फॉलो करना है. सो लास्ट टाइम 1st April 1st October था. इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, आप सॉल्यूशन पेज टर्न करके देख लेना. ओके, बट हियर इन दिस केस टुडे 30th June 31st December इंटरेस्ट डेट है. ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है? लास्ट टाइम कैसा था? ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट भी था. बट टुडे व्हाट हैपेंस, 1st April के साथ में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स. ओपनिंग बैलेंस है, उस दिन कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो ऐसे केस में क्या करने का स्टूडेंट्स? ऐसा मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, डॉटेड लाइन. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. ऐसा डॉट 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 डैश डैश डैश. अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? वी विल डिसाइड दैट. ओके, लास्ट टाइम ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट था 1st April. टुडे ओपनिंग बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट डेट नहीं है. जब भी ऐसा केस होगा ना स्टूडेंट्स, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है और अप्रैल में कोई इंटरेस्ट डेट नहीं है, सो इन दैट केस व्हाट विल डू कि अप्रैल से पहले देखेंगे कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. इट्स वेरी इजी स्टूडेंट. सेकेंड लाइन, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th June एंड 31st December एवरी ईयर. अप्रैल से पहले कौन सा महीना होता है स्टूडेंट्स? मार्च. मार्च इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. दे हैव सेड जून एंड दिसंबर. मार्च से पहले कौन सा महीना होता है? फेब. फेब इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. दे हैव सेड जून एंड दिसंबर. फेब से पहले कौन सा महीना आता है? जैन. जैन इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. इट इज जून एंड दिसंबर. जैन से पहले कौन सा महीना होता है? दिसंबर. एंड 31st December इज द इंटरेस्ट डेट. सेकेंड लाइन, दे विल पे अस इंटरेस्ट twice in a year, June and December. Students, again I will repeat, last time जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस 1st April था, उसी दिन इंटरेस्ट भी डेट था. तो मैंने ऐसा कोई लाइन एक्सटेंड नहीं किया था लेफ्ट हैंड साइड पे, टाइम लाइन को एक्सटेंड नहीं किया था. बट टुडे अभी कैसा है? 1st April को ओपनिंग बैलेंस है. अच्छा, इसके साथ में कोई इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं है 1st April को. जब भी ऐसा केस होगा कि ओपनिंग डेट को सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट डेट नहीं है, सो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल एक्सटेंड द टाइम लाइन. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे. अभी इसको कैसा किया है स्टूडेंट्स? ऐसा डॉट डॉट. व्हाई दैट्स डैश 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 और डॉट डॉट? सिंपल रीजन, ये ट्रांजैक्शन है ना 31st December वाला, ये मैं अकाउंट में पोस्ट नहीं करूंगा. दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स. इसके लिए मैंने ऐसा डैश 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 या डॉट 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 करके एक्सटेंड किया है. That means ये जो ट्रांजैक्शन है दिसंबर वाला, that won't be posted in this account. It will be used only for calculation of number of months. So अब ये 31st December है स्टूडेंट्स. कैसे मिला मुझे? अप्रैल ओपनिंग बैलेंस है. पीछे पलट के देखना है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन कहता है कि कंपनी आपको, या सॉरी गवर्नमेंट आपको साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट देगी, जून में और दिसंबर में. तो अप्रैल से हमें पीछे पलटना है. सो अप्रैल से पहले मार्च. मार्च तो इंटरेस्ट डेट नहीं है, जून और दिसंबर है. मार्च से पहले फेब. फेब तो इंटरेस्ट डेट नहीं है, इट इज जून एंड दिसंबर. फेब से पहले जैन. जैन इज नॉट द इंटरेस्ट डेट, इट इज जून एंड दिसंबर. फिर जैन से पहले दिसंबर. यस, दिसंबर इज द इंटरेस्ट डेट. तो स्टॉप, 31st December पे रुक जाओ. अब इसके पीछे और पीछे नहीं जाना है स्टूडेंट्स. ओके, सो अप्रैल से पहले अभी मुझे कोई पूछेगा कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, तो आई विल से अप्रैल से पहले, प्रायर टू अप्रैल लास्ट इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में मिला था. अगेन आई विल रिपीट, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था 1st April को ओपनिंग बैलेंस भी था और इंटरेस्ट डेट भी था. तो मैंने ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं किया था टाइमलाइन का ऑन लेफ्ट हैंड साइड.
बट टुडे ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1 अप्रैल को सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट का डेट नहीं है उस दिन। तो ऐसे केस में क्या करने का, टाइमलाइन को एक्सटेंड करने का, ओके। और अप्रैल से पहले लास्ट देखने का इंटरेस्ट कब मिला, एज पर द एडजस्टमेंट गिवन जून दिसंबर इंटरेस्ट डेट है, तो अप्रैल से पहले मार्च इज नॉट द इंटरेस्ट डेट, फेब इज नॉट द इंटरेस्ट डेट, जैन इज नॉट द इंटरेस्ट डेट, दिसंबर इंटरेस्ट डेट है, तो 31 दिसंबर इज अवर इंटरेस्ट डेट। और वी कैन इंटरप्रेट दिस वे कि अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने दिसंबर में दिया था, 31 दिसंबर, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने डेट गलत लिख दिया, दिसंबर में चले गए तो 2008 हो जाएगा, आई एम सॉरी। जैन से पहले चले जाएंगे तो प्रीवियस ईयर आ जाएगा ना। सो अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 31 दिसंबर 2008 को, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद पोस्टिंग। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन है ना 31 दिसंबर 2008, ये ट्रांजैक्शन, इसका कोई पोस्टिंग ये अकाउंट में नहीं होगा, ओके। इसका यूज क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स में काम आएगा। सो 31 दिसंबर को छोड़ दो, स्टार्ट विद अप्रैल। अप्रैल हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो विल स्टार्ट विद मंथ ऑफ अप्रैल ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 to balance brought down। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टाइम, 1 अप्रैल 2009 मिस्टर खाना बालू हेल्ड 500 गवर्नमेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स रुपीज 500 नहीं है, जस्ट 500 है, तो 500 क्वांटिटी हो गया। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जब क्वांटिटी या नंबर ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स देगा ना, तो नंबर को मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करना, तो 500 बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय ₹100 ईच, तो 500 इंटू 100 करेंगे तो 50,000 होगा। Held 500 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 100 each at a cost of 48,000। सो कॉस्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 48,000। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने कहा था कॉस्ट कॉलम में कौन सा प्राइस लिखना हमेशा, एज पर रूल नंबर 3 जो हमने 5 रूल लिखे हैं कि द प्राइस शुड बी ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट। अभी यहाँ स्टूडेंट देखो, एट अ कॉस्ट ऑफ 48,000 फुल स्टॉप, नथिंग इज स्पेसिफाइड वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, सो विल एज्यूम दैट कि दिस 48,000 इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो ये 48,000 एक्स इंटरेस्ट है, तो आप लिख सकते हैं। अगर उसको कम इंटरेस्ट एज्यूम करोगे तो आपको उसको ये एक्स इंटरेस्ट करना पड़ेगा, ओके। यू हैव टू ट्रांसलेट कम इंटरेस्ट प्राइस इनटू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। So better we assume that this 48,000 is X interest and we can record under cost column. Students 5 रूल लिखे थे। रूल नंबर 1 क्या था, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। रूल नंबर 2, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट वेदर ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट भी होगा। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू नील था तो इंटरेस्ट भी नील था उसका, बट हियर वी हैव ओपनिंग बैलेंस, सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑल्सो। सो विल मेक कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 1, WN1 मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंटरेस्ट INT एज ऑन 1 अप्रैल 2009। Interest is calculated on face value, which is 50,000. Interest is calculated on face value, which is 50,000. Into rate of interest, 6% government bonds है तो 6%. Now we need number of months. Last time मैंने explain किया था number of months कैसे calculate करना है। अभी हम opening balance में है तो पीछे पलट के देखना है। We have to turn back and last interest कब मिले था वो देखो, आगे नहीं देखना है स्टूडेंट्स, हमेशा पीछे देखना है। तो 1 अप्रैल में हम हैं, we are standing here, so last interest कब मिला था, 31 दिसंबर 2008। so 31 दिसंबर से 1 अप्रैल काउंट करो, तो Jan, Feb and March, so 3 months. Don't count the month of April because students ये 1 अप्रैल है, 30th अप्रैल नहीं है। so 31 दिसंबर से 1 अप्रैल will be 3 months. so interest amount will be 50,000 into 6% into 3 divided by 12. It comes to 750. So here interest column में I will write 750. So this was the opening balance. Face value दिया नहीं था, 500 number of debentures कहा था, so 500 I multiplied with 100, I got the face value. Cost was given 48,000, but it was not specified कि X interest है कि कम interest, I assume it to be X interest, so यहाँ पे X interest। फिर ये 50,000 का फेस वैल्यू का हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 मंथ्स कैसे आया, वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल से पीछे पलट के देखा तो दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, 31 दिसंबर से 1 अप्रैल काउंट नंबर ऑफ मंथ्स, सो नंबर ऑफ मंथ्स इज 3।
We made the calculation, we got 750. तो स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, ओपनिंग बैलेंस डन। ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये डैश 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 करके मैंने टाइमलाइन एक्सटेंड किया, डॉट 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 करके, दैट मीन्स ये 31 दिसंबर का यहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं करना है, इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। सो 1 अप्रैल डन, अभी 1 मई में आ गए, इट इज परचेज ट्रांजैक्शन 1 मई 2009, 1 मई 2009। इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं भूल गया लिखना, दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अभी परचेज देखो, एडजस्टमेंट नंबर ए, 1 मई 2009, फेस वैल्यू रुपीज 10,000। स्टूडेंट्स क्लियरली वहां पे टर्म है रुपीज, तो अभी आपको फेस वैल्यू फाइंड नहीं करना है, वो ऑलरेडी रुपीज में दिया है 10,000। ओके, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपल्सरी। सो वर्किंग नोट नंबर 2, आई एम रिकॉर्डिंग हियर, वर्किंग नोट नंबर 2, INT stands for interest. Interest is on 1st May 2009. Interest is always calculated on face value, which is 10,000. Rate of interest 6%. अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए, वी आर स्टैंडिंग हियर, अभी हम यहाँ पे हैं 1 मई में, तो 1 मई से पीछे पलट के देखना है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कब किया था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, कि कब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पीछे पलट के देखेंगे, तो लास्ट इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड, लास्ट इंटरेस्ट वाज प्रॉमिस्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो 31 दिसंबर 2008 से 1 मई काउंट करो नंबर ऑफ मंथ्स। ओके स्टूडेंट, इसके लिए मैं इंटरेस्ट का डेट हमेशा रेड पेन से रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो 1 मई 2009 यहाँ पे हम खड़े, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, दिसंबर में। सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल तक जाएंगे स्टूडेंट, बिकॉज दैट इज 1 मई, 31 में नहीं है, तो 4/12। सो 10,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, so it comes to 200. So interest amount is 200. Now I need cost. On 1st May 2009, of face value of rupees 10,000 at rupees 102 come interest. Students price हमेशा क्या होना चाहिए, x interest, but here they have said come interest. So ये working note number 2 में ही students पहले हम लिखेंगे come interest price। कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, फेस वैल्यू कितना का है, रुपीज 10,000, रुपीज में है वो स्टूडेंट्स, नंबर नहीं है। आगे कम इंटरेस्ट प्राइस कितना का है, रुपीज 102। सो रुपीज 102 को ना मेक इट परसेंटेज 102%। लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मैंने कहा था अगर फेस वैल्यू रुपीज में है तो आगे जो आपको जो भी प्राइस देगा ना 90, 100, 92, 102, 105, उसको परसेंट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, सो 10,000 into 102%, it comes to 10,200. दिस इज कम इंटरेस्ट प्राइस, हमें चाहिए एक्स इंटरेस्ट, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे, वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये कम इंटरेस्ट प्राइस ये परचेज ट्रांजैक्शन का है, और ये परचेज ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 200, यहाँ पे किया था हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे 200। सो 200 माइनस करो, सो 10,200 माइनस 200, सो फाइनल आंसर इज 10,000। सो वी गॉट द कॉस्ट 10,000। ओके, सो वंस अगेन आई रिपीट, पहला हमने फेस वैल्यू रुपीज 10,000 दिया है, सो रिकॉर्डेड था। फिर ये 10,000 का इंटरेस्ट फाइंड किया, 4 मंथ्स कैसे आया, मई से पीछे पलट के देखा, दिसंबर वाज द लास्ट इंटरेस्ट डेट, 31 दिसंबर टिल 1st में वी गॉट 4 मंथ्स। देन प्राइस दे हैव गिवन अस 102 कम इंटरेस्ट। अकाउंट में जब भी पोस्ट करना है वेदर सेलिंग या परचेज, ओके, या ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस होना चाहिए। तो कम इंटरेस्ट प्राइस देगा ना स्टूडेंट्स, सो वी कैन रिकॉर्ड इट ओवर हियर। क्या करना है, वो कम इंटरेस्ट प्राइस को वी हैव टू मेक इट एक्स इंटरेस्ट। तो उसको एक्स इंटरेस्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स, पहला कम इंटरेस्ट लिखो जो क्वेश्चन में दिया है, फेस वैल्यू 10,000, वहां पे रुपीज 102 का है, तो रुपीज 102 को आई मेड इट 102%। सो 10,000 इंटू 102%, 10,200 माइनस इंटरेस्ट 200। इंटरेस्ट 200 कहां से आया, फ्रॉम हियर, सो 200 माइनस किया, सो वी गॉट 10,000। सो हियर आई रिकॉर्डेड 10,000। सो 1st May इज ऑल्सो डन।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स 30 जून है, इंटरेस्ट का डेट है, मतलब जिसने भी गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीदा है, गवर्नमेंट ने कहा है हम उसको इंटरेस्ट देंगे दिसंबर में और जून में। दिसंबर तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये तो हमें अकाउंट में पोस्ट करना नहीं है, डैश डैश डॉटेड लाइन से है, ओके, तो इसको भूल जाओ, बट ये रिकॉर्ड करना है, इट इज विद इन अवर टाइम लाइन, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आ रहा है जून, सो वी हैव टू रिकॉर्ड। अच्छा, इंटरेस्ट इन्वेस्टर के लिए हमेशा इनकम होगा, सो क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट्स 30 जून 2009 by बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3। लास्ट टाइम मैंने कहा था जब भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन से डील करोगे ना तो फेस वैल्यू डैश, कॉस्ट कॉलम डैश, नील, सिर्फ इंटरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स। आई एम ड्राइंग द वर्किंग ईयर, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, INT stands for interest. Interest is on 30th June 2009। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था वंस अगेन, अभी ये इंटरेस्ट डेट पे आ गए। इसको ऐसा समझना है, सपोज इफ आई हैव एनी बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, FD है, अगर वो बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा तो बैंक विल पे मी इंटरेस्ट, आई विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अगर वो बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं है, नील बैलेंस है, तो आई कांट एक्सपेक्ट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, बैंक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। तो सेम वे इन्वेस्टर है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स खरीदा है ना, अगर उसके पास वो बॉन्ड्स हैं एज ऑन 30th जून तब तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसके पास वो बॉन्ड्स नहीं है एज ऑन 30th जून तो वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट से मांग ही नहीं सकता। अब हमें डिसाइड करना है धाना बालू के पास बॉन्ड्स है कि नहीं है। यस है स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस में भी था और उसने फ्रेश परचेज भी किया है, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 50,000 प्लस 10,000, सो इट कम्स टू 60,000। So face value 60,000 multiply by rate of interest 6%. Now I need number of months. हम जून में खड़े हैं स्टूडेंट्स, लास्ट इंटरेस्ट कम मिला था, पीछे पलट के देखेंगे, रेड पेन से है 31 दिसंबर 2008। सो 31 दिसंबर से 30th जून काउंट करो, एग्जैक्ट 6 मंथ्स होगा स्टूडेंट्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 30th जून है, सो जून भी काउंट करेंगे तो 6 by 12, सो आंसर विल बी 60,000 into 6% into 6 divided by 12, so it comes to 1,800, interest column 1,800। Students, again I repeat, as on 30th जून हमको देखना है धाना बालू ये जो इन्वेस्टर है इसके पास बॉन्ड्स है या नहीं है। स्टूडेंट्स है, कैसे पता, ओपनिंग बैलेंस में भी है और परचेज भी किया है, सो दोनों का इंटरेस्ट मिलेगा, सो दोनों का टोटल किया, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है एज पर द नोट्स विच वी रिकॉर्डेड। वहां पे 5 पॉइंट्स लिखे थे, उसमें पॉइंट नंबर 1 था इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, 50 प्लस 10 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, ये 6 by 12, 30th जून, लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में मिला था, दिसंबर से जून, नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 6, कैलकुलेशन करेंगे 1,800। तो स्टूडेंट्स वी हैव डन दिस ट्रांजैक्शन आल्सो, 30th जून भी हो गया। 1 अगस्त सेल, एसेट बेच रहे हो, व्हेन वी सेल एसेट वी रिसीव कैश बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ऐसे भी समझ सकते हैं। जब परचेज किया था तो डेबिट में लिखा, अभी सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा। 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2009 धाना बालू इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, बॉन्ड्स बेच रहा है बाय बैंक अकाउंट, ओके। डिटेल्स के लिए सेल्स का पैरा देखो, 1 अगस्त 2009 फेस वैल्यू ₹15,000, क्लियरली इट इज ऑलरेडी इन रुपीज स्टूडेंट्स, तो ये 15,000 रुपीज में है, ओके। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कंपल्सरी है, सो वर्किंग नोट नंबर 4 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट INT एज ऑन 1 अगस्त 2009। Interest is always calculated on face value, which is 15,015. Rate of interest 6%, 6 upon 100। अभी नंबर ऑफ मंथ चाहिए ना, 1 अगस्त, अभी हम ये ट्रांजैक्शन यहाँ खड़े हैं, सेल ट्रांजैक्शन पे हैं,
तो अगस्त से पीछे पलट के देखना है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था ना। अगस्त से पीछे पलटोगे तो जुलाई, जुलाई से पहले जून, तो लास्ट इंटरेस्ट जून में मिला था। नाउ यू कैन से दिसंबर स्टूडेंट्स। ओके, सो जब अगस्त से पीछे पलटोगे ना स्टूडेंट्स, तो पहले आपको जून दिखाई देगा। तो 1 अगस्त प्रायर टू दैट लास्ट इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून, सो 30th जून टिल 1 अगस्त। सो नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 1। सिर्फ जुलाई काउंट होगा बिकॉज दिस इज 1 अगस्त नॉट 31st। सो 30th जून, तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे जुलाई, and 1 August, so that means only 1 month, so 1 by 12, 15,000 into 6% into 1 by 12, so divide by 12, it comes to 75 rupees, 75, 15,000, 6%, so it comes to 75। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ 75। नाउ प्राइस देखो स्टूडेंट्स, on 1st August 2009, face value rupees 15,000 at 104 कम इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स जब भी प्राइस कम इंटरेस्ट होगा वी कैन रिकॉर्ड इट डायरेक्टली। सेम वर्किंग नोट नंबर 4 में, सॉरी CUM, कम इंटरेस्ट प्राइस 15,000 आपका फेस वैल्यू है, 104 कहा है उन्होंने, सो मेक इट 104%। 15,000 into 104%, it comes to 15,600. It comes to 15,600. Okay, minus interest। इंटरेस्ट वापस नहीं कैलकुलेट करना है, अभी हमने इसका फाइंड किया था स्टूडेंट, 75 आया था हमको, वी गॉट 75, सो 15,600 माइनस 75, it comes to 15525, so this is our X interest price। so whenever they give us कम इंटरेस्ट, whether वो परचेज हो या सेल हो, कम इंटरेस्ट होगा तो मेक इट एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया, फेस वैल्यू रुपीज 15,000 एट 104 रुपीज 104, सो रुपीज 104 को मैंने परसेंट कर लिया, 15,000 इंटू 104%, 15,600, इंटरेस्ट फ्रॉम ईयर 75, या ये वर्किंग में जो हमने कैलकुलेट किया था 75, सो नेट आंसर 15525, 15525, so this was X interest। now students as per the notes, वहां पे पॉइंट नंबर 4, जब भी सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करना कंपलसरी है। सो उसका मैं वर्किंग बना रहा हूं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट लॉस एज ऑन, जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, 1 August 2009, we have to find how much is profit loss। उसका फॉर्मूला है X इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस X इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस। X इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस अभी फाइंड किया था स्टूडेंट्स 15525, here in working note number 4, 15525, here we calculated, and students उसको यहाँ लिखा भी था हमने, सी X इंटरेस्ट प्राइस 15525, so I recorded here 15525 सेलिंग प्राइस। अभी स्टूडेंट्स माइनस X इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में कभी नहीं देगा, नेवर स्टूडेंट्स। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं। वो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू FV, मैंने शॉर्ट में लिखा फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट INVT, इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू, बिलो दैट डेबिट माइनस क्रेडिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला अप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बड़ा आसान है, बाय बैंक, यहाँ पे फेस वैल्यू कॉलम में 15,000, सो न्यूमरेटर विल रिकॉर्ड 15,000 टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। स्टूडेंट डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब फेस वैल्यू कॉलम का डेबिट साइड में जाओ और उसका टोटल करो सारे ट्रांजैक्शंस। तो एक 50 है और एक 10,000 है, तो 50 एंड 10,000 डेबिट टोटल विल बी 60,000, 60 माइनस क्रेडिट। स्टूडेंट्स माइनस क्रेडिट का मतलब क्या, अगेन क्रेडिट साइड में जाएंगे और फेस वैल्यू कॉलम, बट क्रेडिट कॉलम का टोटल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो भी आपने करंट सेल जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो ना, उसको इग्नोर करो, इग्नोर दैट, इग्नोर दिस 15,000 अंडर फेस वैल्यू कॉलम। अबाउ दैट
प्रायर टू दैट, उससे पहले उसके ऊपर कोई अमाउंट है क्या 15,000 के ऊपर फेस वैल्यू कॉलम में? नो स्टूडेंट, देयर इज नथिंग. सो 60,000 माइनस 0. तो 60,000 कैसे आया? फेस वैल्यू का टोटल किया डेबिट साइड, दो ट्रांजैक्शन थे दोनों का टोटल. क्रेडिट का मतलब जो करंट सेल अभी आपने रिकॉर्ड किया ना उसको इग्नोर करो, उसके ऊपर देयर इज नो अमाउंट, सो माइनस 0. 60,000 माइनस 0. सेम टेक्निक विल अप्लाई फॉर कॉस्ट कॉलम. पहला डेबिट टोटल करेंगे 48,000 10,000, दो ट्रांजैक्शन है, सो 48 प्लस 10 58,000 माइनस क्रेडिट. माइनस क्रेडिट अगेन मीन्स गो टू क्रेडिट साइड कॉस्ट कॉलम. जो करंट सेल अभी आपने रिकॉर्ड किया उसको इग्नोर करो. अबाउ दैट, प्रायर टू दैट, उससे पहले उसके ऊपर कोई अमाउंट है क्या? नो. सो 15,225 के ऊपर कोई अमाउंट नहीं है स्टूडेंट्स, सो माइनस 0. सो नाउ विल सॉल्व दिस. 15,000 60,000 minus 0 is 60,000. 58,000 minus 0 is 58,000. So 15,000 divide by 60,000 into 58,000. So it comes to 14,500. 14,500. So students here 14,500. So selling price ज़्यादा है, cost कम है, so there will be a gain on sale. So 15525 the selling price minus 14,500 हमको cost आया, so it comes to 1025 gain. Students हमने सीखा है, ये बेसिक है. All income gains are credited to P&L. Income gains P&L में credit होता है, but ये P&L account नहीं है student. This is investment account. So if P&L is credited, so obviously this account will be debited. Opposite effect होगा. Same date जिस दिन आपने सेल किया 1st August 2009 to profit and loss account. It was working note number 5. ये working note number 5 था students. So that same number I recorded. और स्टूडेंट्स लॉस या गेन ना हमेशा सिर्फ कॉस्ट कॉलम में आता है, तो हमें यहाँ पे गेन कितने का है? 1025. सो हियर आई विल रिकॉर्ड 1025. सो वी हैव कंप्लीटेड द सेल ट्रांजैक्शन आल्सो. पहला हमने फेस वैल्यू लिखा, ये दिया था, इसका इंटरेस्ट फाइंड किया वर्किंग नोट नंबर 4 में. देन दे हैड गिवन प्राइस एट 104 कम इंटरेस्ट, तो पहले फिर वो कम इंटरेस्ट को हमने एक्स इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया. Come interest face value 15,000 into 104%. We got 15,600 minus interest 75. So we get X interest price 15525. So we recorded here. जब भी सेल होगा तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो. प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज द वर्किंग. X इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस X इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस X इंटरेस्ट तो पता है 15525, अभी हमने यहाँ लिखा था, यहाँ कैलकुलेट किया था. ओके, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो अप्लाई दिस फॉर्मूला. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू इनटू कॉस्ट. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 15,000, वो हमने न्यूमरेटर में लिखा. फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, सो पहले डेबिट टोटल किया 50 प्लस 10 60,000. सो हियर डिनोमिनेटर में 60,000. क्रेडिट क्या करना है स्टूडेंट्स? टोटल नहीं करना है. जो करंट सेल है ना अभी जो आपने रिकॉर्ड किया उसको इग्नोर करो, उसके ऊपर प्रायर टू दैट देयर इज नो अमाउंट, सो 60,000 माइनस 0. सेम वे कॉस्ट किया, पहले डेबिट टोटल 48 प्लस 10 58,000. करंट सेल को इग्नोर किया, अबाउट दैट देयर इज नो अमाउंट, सो 58,000 माइनस 0. सॉल्व किया, वी गॉट 14,500. गेन आया, गेन्स आर क्रेडिटेड टू P&L, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा. सो टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट नंबर 5 1025. सो स्टूडेंट सेल हो गया. 1st September there is a purchase transaction. 1st September purchase transaction. 1st September purchase. Investment account debit to bank account. Details के लिए क्वेश्चन देख लेना. What they say. 1st September 2009. Face value rupees 30,000. Clearly students already वो rupees में, अच्छी बात है. At 105 X interest. But पहले हम इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. This will be working note number 6. I'm recording here working note number 6. Working note number 6. INT stands for interest. Interest is on 1st September 2009. Interest is always calculated on face value. Face value 30,000. So 30,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 6%. अभी नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए. फेस वैल्यू 30,000 इंटू 6%. नंबर ऑफ मंथ्स के लिए टाइम लाइन पे आ जाओ.
1 सितंबर में हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर। पीछे पलट के देखो, आगे नहीं देखना है, पीछे पलट के देखना है लास्ट इंटरेस्ट कब कंपनी ने, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था। तो 1 सितंबर से लास्ट इंटरेस्ट जून, सो 30 जून से 1 सितंबर काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। जुलाई एंड ऑगस्ट जस्ट 2 मंथ, सितंबर काउंट नहीं होगा बिकॉज दिस इज 1 सितंबर। सो 30 जून से 1 सितंबर 2 मंथ्स होता है, सो 2/12। सो आंसर विल बी 30,000 into 6% into 2 divided by 12, it comes to 300. So answer आया ये हमको 300. So here I will record 300. Now हमें प्राइस देखना है। 1 September 2009, फेस वैल्यू 30,000 at 105 x इंटरेस्ट। क्लियरली x इंटरेस्ट का है, कम इंटरेस्ट तो है नहीं, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू रुपीज में दिया है, सो इट इज ऑलरेडी रुपीज, नंबर नहीं है, 30,000। आगे लिखा है 105 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, वो 105 को अभी परसेंटेज इंटू 105%, सो वी गेट 31,500। लास्ट टाइम मैंने 2 तरीके बताए थे स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हैं कि फेस वैल्यू ऑलरेडी रुपीज में 30,000 इंटू जो रुपीज 105 है उसको परसेंटेज करो, सो 31,500। और इस नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फेस वैल्यू कितना है रुपीज 30,000, इसको डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100, सो कितना हो जाएगा 300 नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना, प्राइस एट रुपीज 105, अभी परसेंट नहीं, सिर्फ 1 इंटू 105 विल गेट 31,500। अगर रुपीज 30,000 लेते हो तो 105% से मल्टीप्लाई करना। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेते हो सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 300 होगा, देन इंटू 105, फिर परसेंट की कीमत प्रेस करना। फेस वैल्यू 30,000 इंटू 105% और 300 नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू 105 रुपीज, बोथ द वेज आंसर विल बी सेम 31,500। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी मिल गया, तो हमारा परचेज ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डन। 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट इन्वेस्टर के लिए हमेशा इनकम होता है, तो इसके लिए क्रेडिट साइड पे होगा। 31 दिसंबर 2009 बाय बैंक अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 7 होगा। स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ कहा था, स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेट से जब डील करते हैं ना तो फेस वैल्यू और अमाउंट कॉलम निल, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 7 बना रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 7, इंटरेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जैसे मैंने कहा था, अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। सेम वे बॉन्ड्स अकाउंट में धाना बालू के पास अगर बॉन्ड्स हैं तो ही कैन क्लेम इंटरेस्ट। अगर वो बॉन्ड सब बेच चुका, अब उसके पास कोई बॉन्ड्स नहीं है तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट कैसे डिसाइड करना है, वेरी इजी स्टूडेंट्स। देखो उसके पास पहले ओपनिंग बैलेंस था, क्योंकि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता है तो फेस वैल्यू पे देखेंगे हम। पहला 50,000 ओपनिंग बैलेंस था, फिर एक और परचेज किया 10,000, फिर एक और परचेज किया 30,000। सो तीनों का टोटल 50 प्लस 10 प्लस 30। सो उसके पास 90,000 के बॉन्ड्स थे फेस वैल्यू, ओके 90,000 नंबर नहीं, फेस वैल्यू रुपीज 90,000। बट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, दिसंबर में, 31 दिसंबर को। उसने ना दिसंबर से पहले अगस्त में कुछ बॉन्ड्स ऑलरेडी बेच दिया है। तो स्टूडेंट सिंपल ना, जो बॉन्ड्स वो बेच चुका है, नाउ ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट बॉन्ड्स, उसके पोजीशन में ये बॉन्ड्स है ही नहीं। अब ये किसी और के पास चले गए, किसके पास गए वी डोंट नो, धाना बालू तो बेच चुका है। सो इफ यू हैव सोल्ड हिज बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड जो है 15,000 का, इस पे तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल है स्टूडेंट्स। अगेन ओपनिंग बैलेंस जो दोनों परचेज किया, तीनों को मैंने ऐड किया तो इट कम्स 90,000। बट 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 31 दिसंबर से पहले अगस्त में वो कुछ बॉन्ड्स बेच चुका है, तो अभी ये बॉन्ड्स उसके पोजीशन में नहीं है, उसके पास नहीं है, ये उसका ओनर नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन ओनर बन गया, मुझे पता नहीं वो कौन है। ओके, आई एम कंसर्न विद धाना बालू। सो धाना बालू जो बॉन्ड्स बेच चुका है, वो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट धाना बालू को तो नहीं मिलेगा। तो जब टोटल किया 50 प्लस 10 प्लस 30, 90,000 आया। जो बॉन्ड्स आप बेच चुके हैं उसको माइनस कर दो,
सो 90,000 में से 15,000 माइनस करेंगे. सो राइट नाउ बैलेंस उसके पास जो बॉन्ड्स का है फेस वैल्यू में 75,000 इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय. अभी नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए ना. सो नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हम यहाँ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर. पीछे पलट के देखो लास्ट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कब दिया था? जून में. सो 30 जून से 31 दिसंबर. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 31 दिसंबर तक जाना है. तो 6 महीने हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स 75,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 2250. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2250. वंस अगेन स्टूडेंट्स 31 दिसंबर को हमको देखना है धाना बालू के पास बॉन्ड्स कितना है फेस वैल्यू वाइज. तो मैंने डेबिट टोटल किया 50 प्लस 10 प्लस 30 90. 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. उससे पहले वो कुछ बॉन्ड्स बेच चुका है अगस्त के महीने में. तो स्टूडेंट सिंपल सा रीजन है, जब उसके पास वो बॉन्ड्स है ही नहीं, किसी और के पास चला गया. अभी धाना बालू इसका ओनर नहीं है, इसके पोजीशन में नहीं है. सो धाना बालू कैन नॉट आस्क इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स. तो ये 90,000 में से वो 15,000 सबट्रैक्ट कर देगा जिसका वो ओनर नहीं है. आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स ये 75 कैसे आया? आई एम रिकॉर्डिंग विद पेंसिल ओवर हियर. 90,000 और जो हमने माइनस क्या किया, जो बॉन्ड्स बेच चुका है 15,000. सो 90,000 माइनस 50,000 75. 50 प्लस 10 प्लस 30 90 माइनस 15. सो वी गॉट 75,000 और हमने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया. So this is the transaction for interest. Now next transaction students first Feb sale है. सेल हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है. 1st Feb 2010 बाय बैंक अकाउंट. डिटेल्स के लिए 1st Feb 2010 क्वेश्चन देख लो. फेस वैल्यू रुपीज 15,000. स्टूडेंट्स अगेन 15,000 रुपीज है ऑलरेडी वो. वर्किंग नोट नंबर 8. क्यों? बिकॉज हर ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कंपलसरी है, वेदर ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल या क्लोज सेल, सॉरी दिस सेल सबका इंटरेस्ट फाइंड करना कंपलसरी है. इवन क्लोजिंग बैलेंस जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे. बाय बैंक 15,000. अब इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है. वर्किंग नोट नंबर 8. आई एम रिकॉर्डिंग हियर वर्किंग नोट नंबर 8. इंटरेस्ट इज ऑन 1st Feb 2010. इंटरेस्ट स्टूडेंट्स हमेशा फेस वैल्यू विच इज 15,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. 15,000 क्वेश्चन में दिया था हमको फेस वैल्यू. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो 6%. नाउ वी नीड नंबर ऑफ मंथ्स. वी आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे खड़े. 1st Feb से पीछे पलट के देखना है स्टूडेंट्स के लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था. तो जैसे ही आप फेब से पीछे पलटोगे ना तो देखो रेड पेन से दिसंबर में लास्ट इंटरेस्ट मिला था. आप जून मत कहना क्योंकि फेब से नजदीक में कौन है? दिसंबर है ना. तो जब आप पलटोगे ना तो आपको दिसंबर पहले दिखेगा, जून बाद में दिखेगा. ओके. तो 1st Feb से पहले व्हेन वी टर्न बैक एंड फिर नोटिस लास्ट इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो 31 दिसंबर से 1st Feb. 31 दिसंबर 1st Feb मीन्स ओनली 1 मंथ होता है स्टूडेंट्स. एक ही महीना जैन होता है बीच में. सो 1/12. So answer 15,000 face value, 6% rate of interest into 1/12. So it comes to 75. So यहाँ पे मैंने लिखा 75. ये कोइंसिडेंस है स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम दिया था, ये इंटरेस्ट भी सेम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर मेकिंग आवर कैलकुलेशंस. ओके. So 75. Now we need the price. देखो वहां क्या लिखा था. 1st Feb 2010 फेस वैल्यू रुपीज 15,000 एट 102 एक्स इंटरेस्ट. ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है, अच्छी बात है हमारे लिए स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रुपीज 15,000 फेस वैल्यू रुपीज में 15,000 एट 102 एक्स इंटरेस्ट. सो 102%. तो इट कम्स टू 15,300. दिस इज 15,300. अगेन आई रिपीट, फेस वैल्यू रुपीज में है तो 15,000 रुपीज इनटू अभी जो एक्स इंटरेस्ट रुपीज में ना उसको परसेंट कर लो इनटू 102%. 15,300. अनदर मेथड जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था. अब ये 15,000 फेस वैल्यू है. अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करना है तो उसको डिवाइड बाय 100 करो क्योंकि फेस वैल्यू पर बॉन्ड इज 100. सो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 150 नंबर ऑफ बॉन्ड्स. अभी 150 को मल्टीप्लाई बाय वहां पे क्या लिखा था? 102 एक्स इंटरेस्ट रुपीज 102. सो इंटू 102. अभी परसेंट कीमत दबाना तो भी आंसर आपको सेम आएगा.
तो अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 15,000 से तो इंटू 102% करना, और अगर 150 से करना है नंबर ऑफ बॉन्ड से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 150 कैसे आया, 15,000 डिवाइड बाय 100, 150 इंटू 102 रुपीज होगा, परसेंट नहीं, तो भी आंसर आपका सेम होगा। अच्छा, whenever there is sale transaction we calculate profit and loss. So working note number 9 students, मैं यहां लिख रहा हूं working note number 9, profit loss is on 1st Feb 2010, इन्वेस्टमेंट बेचा है तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करो। फॉर्मूला है एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, हमें पता है वो 15,300, स्टूडेंट्स कैलसी में कैलकुलेट भी किया था और यहाँ लिखा भी है 15,300 माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, ये कभी नहीं देगा, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे है ऑलरेडी, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, फेस वैल्यू ये रहा, ये इन्वेस्टमेंट हमने बेचा अभी 15,000, 15,000, सो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 15,000। टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट का मतलब क्या, डेबिट साइड में जाओ, फेस वैल्यू कॉलम टोटल करो, 50 प्लस 10 प्लस 30, सो इट कम्स टू 90,000। सो डेबिट टोटल फेस वैल्यू का 90,000 माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट, क्रेडिट का मतलब फेस वैल्यू का क्रेडिट साइड का टोटल मत करना स्टूडेंट्स। माइनस क्रेडिट मीन्स व्हाट, जो आपने करंट सेल अभी रिकॉर्ड किया ना 1st Feb 2010 या 15,000, इसको इग्नोर करने का, करंट सेल को, जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन को, वो सेल को इग्नोर करो। अभी उसके ऊपर देखो, प्रायर टू दैट, अबाउट दैट कोई अमाउंट है क्या, ठीक है, अभी ऊपर देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, बट यहाँ है ना स्टूडेंट्स एक अमाउंट, तो ये माइनस होगा। तो जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर, एक बार हो, दो बार हो, जितने भी अमाउंट्स हो वो सारे माइनस करने चाहिए हमको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 15,000 तो इग्नोर करेंगे हम लोग, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। सो ये करंट वाला 15,000 जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो उसको इग्नोर करो, उसके ऊपर देखना स्टार्ट करो, एक और अमाउंट है फेस वैल्यू में, तो वो डिडक्ट होगा, वो कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम है। तो 15,000 मैंने ये वाला 15,000 यहाँ पे माइनस किया। सेम वे कॉस्ट कॉलम में आ जाओ, ये सबका टोटल करो, क्योंकि वहां पे डेबिट माइनस क्रेडिट है ना, डेबिट मतलब टोटल 48 प्लस 10 प्लस 1025 plus 31,500. So it comes to 90,525. So here I will record debit total आया cost का 90,525 minus credit means what? Again students, credit side पे जाओ cost column, जिसका P&L प्रॉफिट लॉस फाइंड कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन को इग्नोर करो। तो ये 15,300 को इग्नोर करो, इसके ऊपर देखो कोई अमाउंट है क्या, यस देयर इज वन अमाउंट 15525, so ये 15525 minus होगा। So when we solve this, so we'll get the answer as cost price. So 15,000 numerator, 90 minus 15 is 75,000 into 90,000 525 minus 15525, it comes to 75,000. So ये आया 75,000। तो 75 कैंसिल, बचेगा क्या, 15,000। 75 कैंसिल नहीं, ऐसे करना है तो स्टूडेंट्स 15,000 डिवाइड बाय 75,000 इनटू 75,000, तो भी आंसर सेम आएगा। सिंपल ऐसा ही ना, 75 कैंसिल, सो बचा क्या 15,000, सो आई रिकॉर्डेड हियर। अगेन सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो वापस से आपको गेन हुआ 15,300 माइनस 15,000, सो वी गॉट 300 गेन। ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड टू P&L, P&L में क्रेडिट होगा, बट ये P&L अकाउंट नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो P&L क्रेडिट, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। दिस डेट, जिस दिन आपने सेल किया 1st Feb, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर इसका कितना था स्टूडेंट्स, 9, वर्किंग नोट नंबर 9। ये लॉस गेन हमेशा सिर्फ कॉस्ट कॉलम में आता है। हाउ मच वाज द गेन, 300, सो हियर आई विल रिकॉर्ड 300। वंस अगेन फेस वैल्यू दिया था, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये वर्किंग नोट नंबर 8 इंटरेस्ट मिला। दिस हाउ वी गॉट 15,000 फेस वैल्यू इनटू 102%, वी गॉट 15,300। नाउ जब भी सेल ट्रांजैक्शन होगा तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करो, एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 15,300, यहां से कॉपी किया,
कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने फाइंड किया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इसका फेस वैल्यू 15,000 न्यूमरेटर में गया, अपॉन टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू मतलब सबका टोटल करो 50, 10 एंड 30, सो 90,000, आई रिकॉर्डेड 90। माइनस क्रेडिट, माइनस क्रेडिट मतलब जिसका पीएनएल फाइंड कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन को इग्नोर करो, करंट सेल को इग्नोर करो। अबाउट दैट देखो स्टूडेंट्स, एक ट्रांजैक्शन है 15,000, सो माइनस किया। कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो मैंने कॉस्ट का टोटल किया, ये तो अभी लिखा मैंने 300, यहां तक मैंने टोटल किया 48, 10, 1025, 31,500, वी गॉट 90525। माइनस क्रेडिट, माइनस क्रेडिट मतलब करंट सेल जो भी आपने लिखा इग्नोर करो, उसके ऊपर एक अमाउंट है यस 15525, सो आई रिकॉर्डेड 15525। ये सॉल्व किया, वी गॉट 15,000, गेन 300। गेन पीएनएल में क्रेडिट होता है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, सो हियर वी रिकॉर्डेड। So students, even this sale transaction is completed. So last अभी हमको accounts close करना है, 31st March we are closing the account. So account close करना है मतलब total करना है students. So here we'll do the total. पहले फेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, उसको क्लोज करना चाहिए हमेशा। 50,000, 10,000, 30,000, so it comes to 90,000। सेम टोटल यहाँ लिखो 90। अब स्टूडेंट सिर्फ बैलेंस फिगर फाइंड करना है अभी हमको। 31st March 2010 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000, 15, 15 वो 30, so 90,000 माइनस 30, माइनस 30 क्यों, माइनस 15, माइनस 15, so बैलेंस फिगर है 60,000, ये 60। अगर नोट्स का अगर पॉइंट नंबर 2 आपको याद है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट। एवरी ट्रांजैक्शन मतलब चाहे ओपनिंग बैलेंस हो, परचेज हो, सेल हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, सबका इंटरेस्ट। अगर आप फेस वैल्यू में कुछ भी लिखते हो ना स्टूडेंट्स, उसका इंटरेस्ट भी आता है। देखो यहाँ भी फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट आया, फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट आया। सेम में यहाँ फेस वैल्यू है तो इंटरेस्ट आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। हाँ, ये हो सकता है आंसर कभी 0 आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कैलकुलेशन करना है हमको। वर्किंग नोट नंबर अभी स्टूडेंट्स ये 10 हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 10। So here working note number 10, interest is on 31st March 2010। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, जो हमें 60,000 आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% कौन, ये 60,000 फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। नंबर ऑफ मंथ चाहिए, वी आर स्टैंडिंग ईयर, अभी हम यहाँ खड़े हैं 31st मार्च। पीछे पलट के देखो, तो पीछे पलट के देखेंगे ना स्टूडेंट, सो लास्ट इंटरेस्ट डेट प्रॉमिस डेट बाय द गवर्नमेंट वाज डिसम्बर, सो 31st December से 31st March, सो 3 months, 31st December से 31st March, Jan, Feb, March। सो आंसर विल बी 60,000 into 6% into 3 divide by 12, it comes to 900। सो हमें इंटरेस्ट मिल गया 900। तो मैंने पहला स्टूडेंट्स फेस वैल्यू का टोटल किया, 90 आया डेबिट साइड, सेम टोटल यहाँ कॉपी किया, और ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे पेंसिल से कर देता हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके 60,000, देन ये 60,000 का इंटरेस्ट फाइंड किया इन वर्किंग नोट नंबर 10। फिर अभी इंटरेस्ट का टोटल करना है। सुन, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू डेबिट का टोटल करते हैं पहले, इंटरेस्ट का क्रेडिट का टोटल करेंगे पहले। सो 1800 प्लस 75 प्लस 2250 प्लस 75 प्लस 900, सो इट कम्स टू 5100। सेम टोटल यहाँ लिखो। अब देखो क्या बैलेंसिंग फिगर आता है, वो हमेशा पीएनएल में जाएगा। 31st March 10 इंटरेस्ट में जो भी बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स हमेशा पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे उसको। नथिंग इन फेस वैल्यू एंड अमाउंट कॉलम। हम इंटरेस्ट का टोटल कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट कॉलम में देखो बैलेंस फिगर 5100 टोटल है, माइनस 750 माइनस 200 माइनस 300, इट कम्स टू 3850। अगेन इट्स अ बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स, ये बैलेंसिंग फिगर है 3850 बैलेंसिंग फिगर। ओके, पहला फेस वैल्यू का टोटल किया, सेम टोटल यहाँ लिखा, बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया, उसका इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 10 में फाइंड किया। फिर इंटरेस्ट का टोटल किया 5100, सेम टोटल आई रिकॉर्डेड ईयर, बैलेंसिंग फिगर मिल गया। अब कॉस्ट कॉलम में आ जाओ। कॉस्ट कॉलम लाइक फेस वैल्यू, डेबिट टोटल पहले करना है लाइक फेस वैल्यू, तो उसका 48,000 प्लस 10,000 प्लस 1025
plus 31,500 plus 300. It comes to 90,825. 90,825. So 90,825 same total will be recorded here. 90,825. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने मार्केट प्राइस दिया था. क्या ये क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट में कहीं पे. शो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ धाना बालू फॉर ईयर एंडेड. आई थिंक देयर इज नो मार्केट प्राइस गिवन फॉर 31st मार्च. मार्केट प्राइस नहीं है स्टूडेंट्स. तो अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस एंड फिगर फाइंड कर लेते हैं. 90,825 इज द टोटल. ये डेबिट का टोटल था, सेम यहाँ लिखा. अभी बैलेंस एंड फिगर देख लेते हैं. -15525 माइनस 15,300. इट कम्स टू 60,000. सो यहाँ बैलेंस एंड फिगर आएगा 60,000. स्टूडेंट्स अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट सॉरी. ये 60,000 जो है ना स्टूडेंट्स, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम आया, ऐसा कुछ सोचना नहीं. वो हमने कैलकुलेशन किया, आंसर सेम आया. तो ये अगेन ये बैलेंस एंड फिगर है 60,000. सम टोटल. अच्छा, लास्ट टाइम मार्केट प्राइस दिया था तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे, एक और वर्किंग बनाया था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्योंकि मार्केट प्राइस दिया था. हियर इन दिस क्वेश्चन मार्केट प्राइस इज नॉट गिवन, तो वर्किंग की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस एंड फिगर लिखो, सॉल्यूशन खत्म. क्लोज कैसे किया, पहले फेस वैल्यू कॉलम का टोटल, सेम टोटल यहाँ पे, बैलेंस एंड फिगर 60,000. ये 60,000 का वर्किंग नोट नंबर 10 में इंटरेस्ट फाइंड किया. फिर इंटरेस्ट का टोटल किया 5,100, सेम टोटल आई रिकॉर्डेड हियर, बैलेंस एंड फिगर 3850. कॉस्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, इसका टोटल किया 90,825, सेम टोटल ओवर हियर, एंड स्टूडेंट्स बैलेंस एंड फिगर 60,000. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें मार्केट प्राइस था, तो हमने एक वर्किंग नोट बनाया था, वहां पे ऐसा लिखा था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. अभी उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल रीजन बिकॉज मार्केट प्राइस नहीं दिया है, तो सिर्फ बैलेंस एंड फिगर लिखो, सॉल्यूशन खत्म. ओके, एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना फिक्स इनकम सिक्योरिटी का क्वेश्चन होगा तो 5 रूल भूलना नहीं. इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इंटरेस्ट. प्राइस हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए. इफ दे गिव अस कम इंटरेस्ट मेक इट एक्स इंटरेस्ट. जब भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट फाइंड प्रॉफिट लॉस, एंड वेन यू क्लोज द अकाउंट प्लीज लास्ट में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. वो 5th पॉइंट था, बट आज अभी हमें मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो मैंने रूल नंबर 5 नहीं फॉलो किया, सिर्फ बैलेंस एंड फिगर लिख दिया. वी आर हेल्पलेस क्योंकि मार्केट प्राइस नहीं दिया है. ओके, ये 5 रूल याद रखना. फिर हमेशा अकाउंट बना लिया स्टूडेंट्स, फिर ये टाइम लाइन बनाओ. जो ट्रांजैक्शन आपको दिए ना, डेट के सीक्वेंस में, मंथ के सीक्वेंस में अरेंज कर लो. 1st April ओपनिंग बैलेंस था, परचेज था, इंटरेस्ट दैट सेट सेकंड लाइन में ये काम, गवर्नमेंट विल पे यू इंटरेस्ट इन द मंथ ऑफ जून एंड डिसंबर, 30th जून 31st डिसंबर. ये ऐसे मैंने अरेंज किया. ये स्टूडेंट्स पहले मैंने स्टार्ट यहां से किया था 1st April, ये बाद में लिखा था. लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स 1st April ओपनिंग बैलेंस भी था और इंटरेस्ट डेट भी था, बट टुडे ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है ना 1st April को. जब भी आपका सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का डेट दिया है ना, तो क्या करने का, ये टाइम लाइन को लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटेंड करने का, डॉटेड से, डॉट 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 या डैश डैश करके. दिस डैश 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 या डॉट डॉट करके मतलब क्या, ये ट्रांजैक्शन जो है ना 31st दिसंबर का, ये अकाउंट में पोस्ट नहीं किया जाएगा. दिस विल बी यूटिलाइज ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स. तो अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, क्वेश्चन में कहा है जून एंड दिसंबर इज द इंटरेस्ट डेट. सो अप्रैल से पहले मार्च होता है, मार्च इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. मार्च से पहले फेब होता है, फेब इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. फेब से पहले जैन होता है, जैन इज नॉट द इंटरेस्ट डेट. जैन से पहले क्या होता है, दिसंबर. सो दिसंबर इंटरेस्ट डेट क्वेश्चन में कहा है, सो 31st दिसंबर. ओके, आगे जून तक नहीं जाना है हमको, पीछे और बस एक बार मालूम पड़ गया ना लास्ट 31st दिसंबर को इंटरेस्ट मिला. सो ये हमारे काम आएगा किस लिए, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए. सो पहले ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू दिया था, उसका इंटरेस्ट फाइंड किया वर्किंग नोट में. ये 48,000 लिखा था, क्वेश्चन में दिया था, बट वो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया, सो वी एज्यूम इट टू बी एक्स इंटरेस्ट. देन मे में परचेज था, फेस वैल्यू वाज गिवन, इंटरेस्ट हमने फाइंड किया ये वर्किंग नोट में. देन दिस प्राइस वाज गिवन टू अस बट इट वाज कम इंटरेस्ट, तो मैंने वो कम इंटरेस्ट प्राइस यहाँ नहीं लिखा, उसका वर्किंग बनाया. कम इंटरेस्ट प्राइस, फेस वैल्यू 10,000 इंटू 102%, वी गॉट 10,200 माइनस दिस इंटरेस्ट 200, वी गॉट 10,000, यहाँ 10,000 लिखा. ओके स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंस है कि फेस वैल्यू और कॉस्ट सेम आ रहा है, ऐसा कुछ सोचना नहीं. वी मेक द कैलकुलेशन, आंसर सेम आया तो लेट इट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देन स्टूडेंट्स जून में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट कॉलम पे ध्यान दो, फेस वैल्यू अमाउंट को भूल जाओ। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे समझना है, अगर मेरे पास बॉन्ड्स हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड्स नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जून तक की बात थी ना, तो यानी उसके पास जून तक सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शन था 50 एंड 10, तो इसके लिए 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था एंड नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, ये आंसर यहाँ लिखा। फिर स्टूडेंट्स अगस्त में सेल किया, परचेज डेबिट होता है, सेल क्रेडिट साइड, 15,000 फेस वैल्यू, उसका इंटरेस्ट फाइंड किया, वर्किंग नोट नंबर 4। फिर उसका जो प्राइस था ना वो कम इंटरेस्ट था, तो हमने यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस लिखा 15,000 इंटू 104, 15,600 माइनस इंटरेस्ट 75, वी गॉट 15525। सो ये 15525 हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब भी सेल होगा तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड किया एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस माइनस एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 15525 यहाँ से कॉपी किया, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 15,000 अपॉन टोटल फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट 50 प्लस 10 60, ये इग्नोर करंट सेल, अबाउट दैट देयर इज नो अमाउंट 0। सेम वे कॉस्ट कॉलम 48 प्लस 10 58, कॉस्ट कॉलम 15525 इग्नोर करो, अबाउट दैट नो अमाउंट 0, सॉल्व करो, यू गॉट दिस, गेन आया, गेन पीएनएल में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट में डेबिट होगा, सो वी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, फिर सेम वे हमने 1 सितंबर परचेज था 30,000, उसका इंटरेस्ट फाइंड किया, ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट था 30,000 इंटू 105% किया। ओके, देन स्टूडेंट्स 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट है, सितंबर के बाद डायरेक्टली दिसंबर में ट्रांजैक्शन था, दिसंबर में आपके पास कितना बॉन्ड्स है 50, 30, 10 एंड 30, 90,000, बट दिसंबर से पहले आप कुछ बॉन्ड्स बेच चुके हो 15,000, ये बॉन्ड्स के अब आप मालिक नहीं हो, इट्स नॉट इन योर पोजीशन, सो ये 15,000 पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा था 90 माइनस 15, 75,000 पे सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। 50, 30, 10 एंड 30 इज 90,000 माइनस 15 जो आप बॉन्ड्स बेच चुके हैं, फिर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वी रिकॉर्डेड हियर। देन अगेन सेल था 1 फेब, फेस वैल्यू, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट प्राइस था स्टूडेंट्स, तो उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया 15,000 इंटू 102%। जब भी सेल होगा तो फाइंड प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस फाइंड किया। ओके, टोटल 90,000 डेबिट साइड, सो देखो डिनोमिनेटर में 90 लिखा है, ये माइनस 15 कहां से आया स्टूडेंट्स, जो आप सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना उसको इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर देखोगे ना तो 15,000 था, तो मैंने ये 15 माइनस किया है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों 15 है, तो करंट सेल माइनस नहीं होता है, उसके ऊपर अगर कोई अमाउंट है तो दैट अमाउंट इज डिडक्टेड, सो ये 15 माइनस किया। सेम वे कॉस्ट कॉलम 48 प्लस 10 प्लस 1025 प्लस 31,500, ये तो बाद में लिखा था 300, सो 31,500 तक टोटल करोगे तो 90525 माइनस ये कहां से आया, इग्नोर करंट अमाउंट, ये करंट सेल का, इसके ऊपर देखो है ना एक ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए माइनस किया, तो सॉल्व करोगे 15,000 गेन आया, गेन पीएनएल में क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। देन स्टूडेंट्स फाइनली भी क्लोज द अकाउंट, फेस वैल्यू का टोटल यहाँ लिखा, बैलेंसिंग फिगर, उसका इंटरेस्ट फाइंड किया, इंटरेस्ट का टोटल 5,100 यहाँ लिखा, बैलेंसिंग फिगर, फिर कॉस्ट का टोटल किया, सेम टोटल यहाँ, सिंस आज मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो मैंने बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया। दैट्स ऑल, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। थैंक यू।